Welcome back to my YouTube channel. Now, today we are going to discuss resources and geography का chapter 1. So, we are talking about natural resources. Everything that we see around ourselves is a resource? No, सब resource नहीं है. Resource कहने के लिए कुछ चीज़ें होनी compulsory है, जैसे कि natural form में होनी चाहिए. दूसरी accessibility होनी चाहिए, economically feasibility होनी चाहिए, तब जाकर हम एक किसी चीज़ को नेचुरल रिसोर्स कह सकते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल वी कैन टेक एनी मिनरल. मिनरल क्या है? मिनरल मिलता है हमारे नेचर में, नेचुरल है. सो फर्स्ट पॉइंट इज नेचुरल है. दूसरा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है उसका. तीसरा फिजिबल है. अब फिजिबल का मतलब क्या होता है? सो इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट है. नेक्स्ट टर्म इज़ फिजिबल, यूज़फुल है. अब कोई भी चीज़ है और वो हमारे यूज़ का नहीं है तो दिस इज़ नॉट बी कंसिडर्ड एज रिसोर्सेज. फोर्थ पॉइंट इज़ वायबल है. वायबल इन टर्म्स दैट इट इज़ इकोनॉमिकली पॉसिबल टू यूज़ दैट रिसोर्सेज एज फॉर आवर फ्यूचर नीड्स. हमारे नीड्स को भी सेटिस्फाई करें, दैट इज़ नोन एज रिसोर्सेज. फॉर एन एग्जाम्पल इन बिटवीन आता है वाटर. तो कैन वी कंसिडर एज वाटर एज अ रिसोर्स? यस, वाटर इज़ ऑल्सो अ रिसोर्स. इसके आगे इसका सब डिविजन्स है, लेटर ऑन उसको पढ़ेंगे, बट फिलहाल ये इतना ही है. एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज़ ह्यूमन रिसोर्स. yes, human is also a resource and itself it is a human resource because it is important as well. We are talking about interdependent relationship. What is the interdependent relationship? The interdependent relationship is amongst human beings, technology, institution and physical environment. That this nature is our resource, this is human beings, we, and the technology and the institution. So how they are interdependent on each other? They are interdependent because if we know there is a resource, हम जानते हैं यहाँ पे resource है, but how can we उसको हम use कैसे करेंगे, उसको निकालेंगे कैसे? For that purpose we need technology. So we are dependent for technology, for the nature. So technology, पता है हमें इस technology से हम ये resource निकालेंगे, but उस technology को use कैसे करेंगे? For that purpose we need institution. So for human beings to use nature we need technology, as well as for technology we need institution. In that way human beings and nature are interdependent. That is the interdependent relationship between human and the nature and the resources. Next thing, the next topic is the subdivisions that comes amongst the natural resources. Natural resources is subdivided into categories to make it easier for everyone to understand. So the resources is divided into 4 categories. लिख दे रहे हैं. The first is on the basis of origin. The second is on the basis of exhaustibility. The third is on the basis of ownership, and the fourth is on the basis of status of development. The first is on the basis of origin. That is biotic, and abiotic. The word itself releases that biotic means biology से related natural, and abiotic means unnatural. Unnatural मतलब. So on the basis of origin, that is biotic resources, and abiotic resources. Biotic resources that is composed of living things, and abiotic resources that is composed of non-living things. For example, living is flora, fauna. Flora is the flower part, fauna is the animal part. Abiotic resources is all the resources that is non-living, rocks and metals. So clearly flora, fauna, rocks, metals, they all are resources. The second thing is on the basis of exhaustibility.
on the basis of exhaustibility, that is renewable resources and non-renewable resources. Renewable and non-renewable. The renewable word is made from renew and this is non-renew. So renew means what? Renew means we can रीन्यू मतलब रीमेक इट, उसको फिर से बना सकते हैं, वो फिर से कंज्यूम होने के बाद भी उसे हम यूज़ कर सकते हैं. नॉन रिन्यूएबल जो एक बार एग्जॉस्ट हो जाएगा तो हम उसको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हैं. सो व्हाट इज़ द एग्जाम्पल? एग्जाम्पल इज विंड एनर्जी, forest, and it is fossil fuels. So once wind is consumed, we can recreate it. Once energy is consumed, we can recreate it. Once as forest is consumed, temporarily we can recreate it, not an advanced level but फिर भी. And fossil fuels, if we talk about the fossil fuels, इतना ज़्यादा अभी फॉसिल फ्यूल्स को लेकर क्यों है? क्योंकि अगर एक बार ये ख़त्म हो गया ये दोबारा नहीं बन पाएगा एंड हेंस इट इज़ लिमिटेड. अगर एक बार हमने सारा यूटिलाइज कर लिया तो वी कैन नॉट मेक इट ट्वाइस. सो देयर इज़ अ क्वेश्चन, वाटर इज़ व्हाट? रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज? कमेंट करके बताना. नेक्स्ट, द बेसिस ऑफ ओनरशिप. ओनरशिप दैट रिसोर्सेज किसके अधीन आता है, किसके अंदर आता है? इफ देयर इज़ 3 पार्ट्स, इंडिविजुअल, कम्युनिटी एंड नेचुरल रिसोर्सेज. अगर इंडिविजुअल रिसोर्सेज के बारे में बात करें तो इंडिविजुअल रिसोर्सेज इज़ समथिंग दैट इज़ पर्सनल टू समवन. अगर हम इंडिविजुअल रिसोर्सेज की बात करें तो इंडिविजुअल रिसोर्सेज जो मेरे अंदर आता है, जिस पे मेरा हक है, हम उसको नहीं किसी भी इंडिविजुअल रिसोर्सेज की बात करें तो इंडिविजुअल रिसोर्सेज किसी एक पर्सन के अंदर आता है, वो किसी दूसरे पर्सन की प्रॉपर्टी नहीं है. जैसे कि इंडिविजुअल प्रॉपर्टी, अगर हम किसी की प्रॉपर्टी के बारे में बात करें, उसका घर, उसका मकान, उसका ये, तो वो इंडिविजुअल रिसोर्स है, वो उसके नाम पे है, दैट इज़ इंडिविजुअली, दैट इज़ अबाउट ऑफ वन पर्सन. कम्युनिटी रिसोर्सेज के बारे में बात करें तो कम्युनिटी रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज है जो ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में बात होता है, जहाँ पे दैट इज़ जैसे कि पार्क. अगर एक पार्क है तो पार्क्स, अगर एक कम्युनिटी का पार्क है तो दैट इज़ कम्युनिटी रिसोर्सेज, दैट इज़ नॉट इंडिविजुअल, इवन दैट इज़ नॉट नेचुरल, बिकॉज इन द केस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इट इज़ अबाउट द स्टेट टेरिटरी और द नेशनल लेवल पे है. जैसे कि हमारा फॉसिल फ्यूल्स है, कहीं भी रॉक्स मिल रहा है, कहीं पे मिनरल्स मिल रहा है, दैट इज़ अबाउट नेचुरल रिसोर्सेज. सो देयर इज़ बेसिक डिफरेंस. नेचुरल रिसोर्सेज कभी भी इंडिविजुअल नहीं हो सकता है. इंडिविजुअल रिसोर्सेज at some extent it can be turned into natural or community, but natural resources it cannot be turned into individual resources. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट. स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट मतलब हमारे पास रिजर्व्स है, उसके बेसिस पे वो कितना ज़्यादा लोगों के लिए यूज़फुल हो सकता है, उस बेसिस पे इसको डिवाइड किया गया है. देन द डिवीज़न इज़ पोटेंशियल रिसोर्स, डेवलप्ड रिसोर्स, स्टॉक एंड रिजर्व्स. काफ़ी मिलता जुलता टर्म्स है एक दूसरे से. पोटेंशियल रिसोर्स इज़ पोटेंशियल, जैसे कि हमें पता है यहाँ पर कोई रिसोर्स है बट राइट नाउ वी आर नॉट इन दैट स्टेज कि हम उसको निकालें और उसको यूज़ कर पाएँ. सो दैट इज़ पोटेंशियल. फॉर एग्जांपल राजस्थान के साइड में कुछ भी एनर्जी रिसोर्स है बट राइट नाउ हमें नहीं पता कि हम किस टेक्नोलॉजी से उसे निकालें, कैसे यूज़ कराएं, बट वी नो दैट देयर आर समथिंग. सो दैट इज़ पोटेंशियल रिसोर्स. डेवलप्ड रिसोर्स, डेवलप्ड रिसोर्स दैट हम यूज़ कर रहे हैं, डेवलप हो चुका है, लोग उसको प्रॉपर यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ डेवलप्ड रिसोर्स. स्टॉक, स्टॉक इज़ समथिंग दैट, जैसे हम लोग स्टॉक करके रखते हैं तो स्टॉक इज़ समथिंग जो हम बचा के रखते हैं फ्यूचर के लिए. जैसे कि अभी फॉसिल फ्यूल्स ख़त्म हो रहा है तो हम लोग उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं अभी कम यूज़ करो, फ्यूचर जनरेशन को यूज़ करवाना है, दैट इज़ स्टॉक. तो हम उसको बचाने की यूज़ कर रहे हैं. एंड नेक्स्ट इज़ रिजर्व्स. रिजर्व्स इज़ ऑल्सो अ सब डिविज़न ऑफ स्टॉक. कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. डिफरेंस ये है कि स्टॉक के केस में
हमें पता नहीं होता है कि हम उसे निकालें कैसे, या फिर पता होता है तो हम उसे बचा कर रखते हैं। और रिज़र्व के केस में हमारे पास है और हम उसको बचाकर, पोटेंशियल रिसोर्स वो होता है जहाँ हमें पता होता है कि इस एरिया में हमारा पोटेंशियल है, इस एरिया में हमारे पास रिसोर्स है, वी कैन यूज़ इट फॉर फ्यूचर, पर राइट नाउ वी आर नॉट एप्लीकेबल कि हम किसी टेक्नोलॉजी से उसे निकालें और उसे यूज़ कर पाएँ। दैट इज़ आवर पोटेंशियल रिसोर्स। फॉर एग्जाम्पल, राजस्थान के अराउंड हमारे पास एनर्जीज़ हैं, हमें पता है वहाँ पे एनर्जी पावर है, हम यूज़ कर सकते हैं, बट अभी हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हम उसे यूज़ कर पाए। सो दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी एज पोटेंशियल रिसोर्स। डेवलप्ड रिसोर्स, सेकेंड इज डेवलप्ड रिसोर्स। देन द डेवलप्ड रिसोर्स इज दैट जिसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही डिटरमाइंड हो चुकी हैं, दोनों ही यूज़ हो चुकी हैं, पता कर चुकी है कि हाँ हम इसे यूज़ कर चुके हैं, कर सकते हैं। नाउ द डेवलप्ड रिसोर्स, डेवलप्ड रिसोर्स इज जिस रिसोर्स की क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी दोनों हमें पता है और हम उसे निकाल कर अपने यूज़ में ला सकते हैं। दैट इज़ नोन एज डेवलप्ड रिसोर्स। फॉर एग्जांपल, इस एरिया में कितना है, क्या है, कैसा है, हमें इसके बारे में सारा कुछ आइडिया है और हम उसे निकाल कर यूज़ कर सकते हैं। दैट इज़ नोन एज डेवलप्ड रिसोर्स। इसके लिए हमें क्या ज़रूरत होती है? हमें टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है। दैट वी नो, हमें पता है कि कौन सी टेक्नोलॉजी से हम क्या कर सकते हैं। दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी एज डेवलप्ड रिसोर्स। नाउ द स्टॉक। अब डेवलप्ड रिसोर्स में हमें टेक्नोलॉजी पता थी, हमें पता था कि इस एरिया में यहाँ पर इतना रिसोर्स है, हमें पता था इस किस क्वालिटी का है, किस क्वांटिटी का है, एंड दो हम जानते थे कि किस टेक्नोलॉजी से इसे निकालना है। फॉर स्टॉक हमें पता तो है कि यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं, बट हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है उसको निकालने के लिए। दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी एज अ स्टॉक। मतलब आप फ्यूचर में टेकिंग टू द रिजर्व्स के केस में हमें टेक्नोलॉजी तो पता है, बट राइट नाउ वी आर नॉट यूजिंग इट। हमें पता है हमें किस टेक्नोलॉजी से उसको निकालना है, बट वी आर नॉट यूजिंग इट, वी आर नॉट टेकिंग आउट द रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल, रिवर से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है, बट हम अभी ऐसा नहीं कर रहे बिकॉज हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स हैं। जब वो ऑल्टरनेटिव्स ख़त्म हो जाएंगे तब शायद हम उसे यूज़ करेंगे। तो दैट टेक्नोलॉजी और दैट रिसोर्स वी आर कंसिडरिंग एज रिजर्व्स। हम बचा के रख रहे हैं उसको फर्दर, एंड नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।